دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کی سب سے اہم اور سب سے روشن حقیقت کے بارے میں۔ وہ ہے قرآن کا نزول۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ کتاب دنیا کی کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے اپنے سب سے بڑے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی حضور محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ نزول کی شروعات۔ قرآن کا نزول رمضان کے مبارک مہینے میں شروع ہوا۔ اس وقت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکہ مکرمہ کے پاس ایک پہاڑ پر جایا کرتے تھے جسے جبل نور کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ہرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی یاد اور عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک رات پوری انسانیت کی تقدیر بدل گئی۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی سے کہا، اقرا پڑھو۔ نبی نے عرض کیا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کو دبایا اور دوبارہ کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یوں قرآن کی پہلی 5 آیات سورہ العلق سے نازل ہوئیں۔ دھیرے دھیرے نزول۔ قرآن ایک ساتھ پورا نہیں اتارا گیا، بلکہ یہ نبی پر 23 سال میں دھیرے دھیرے حالات اور ضرورت کے مطابق نازل ہوا۔ 13 سال مکہ میں جنہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، 10 سال مدینہ میں جنہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ تدریجی نزول اس لیے تھا تاکہ امت کو آسانی ہو، صحابہ کرام کو تربیت ملے اور ایمان ہر حالات میں مضبوط کیا جا سکے۔ لوح محفوظ سے نزول۔ اصل میں قرآن پہلے سے ہی اللہ کے پاس لوح محفوظ میں موجود تھا۔ وہاں سے اسے آسمان دنیا پر ایک مقدس جگہ بیت العزت میں اتارا گیا۔ پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام اسے حکم الہی کے مطابق دھیرے دھیرے نبی پر نازل کرتے رہے۔ نزول کا مقصد قرآن کا نزول صرف کتاب دینا نہیں تھا، بلکہ انسانیت کو ایک مکمل نظام زندگی دینا تھا، تاکہ لوگ توحید کو پہچانیں، شرک اور گمراہی سے بچیں، اچھائی کو اپنائیں اور برائی سے دور رہیں، انصاف، رحمت اور انسانیت کے اصولوں پر زندگی گزارے۔ قرآن کی اہمیت۔ قرآن رحمت ہے، نور ہے، شفا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی ہے۔ نتیجہ۔ دوستوں، قرآن کا نزول صرف 1400 سال پہلے کی ایک تاریخی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آج بھی زندہ اور قائم ہے۔ یہ کتاب آج بھی ہمیں وہی روشنی دیتی ہے، وہی رحمت دیتی ہے اور وہی ہدایت دیتی ہے جو صحابہ کو ملی تھی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں عمل کریں، کیونکہ یہی وہ کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے گا۔ قرآن میں اللہ کا پیغام۔ دوستوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ وہ آسمانی کتاب ہے جو انسانیت کے لیے آخری اور مکمل رہنمائی بن کر نازل ہوئی۔ اللہ نے اس کتاب میں انسان کے لیے ہر اس بات کو بیان کر دیا جو اس کی زندگی کو بہتر بنائے، اسے صحیح راستہ دکھائے اور اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی تک پہنچائے۔ قرآن کا پیغام بہت وسیع اور گہرا ہے، لیکن ہم اسے بڑے اختصار کے ساتھ کچھ اہم حصوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا، توحید، اللہ کی یقین اور عبادت۔ قرآن کا پہلا اور سب سے بڑا پیغام ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ سمجھاتا ہے کہ پوری کائنات کا مالک وہی ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان، جانور، سب اسی کے حکم سے پیدا ہوئے اور اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ الاخلاص 112۔ یعنی کہہ دو، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا لیا، اور اس کے سوا کوئی اس کا برابر نہیں۔ قرآن کا پیغام صاف ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کا حق نہیں۔ شرک،
अल्लाह के साथ किसी को साजी ठहराना सबसे बड़ा गुनाह है। इंसान का असली मकसद है सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। दूसरा, नबूवत और रसालत। कुरान का दूसरा बड़ा पैगाम है नबूवत और रसालत। अल्लाह ताला ने हर कौम और हर ज़माने में अपने पैगंबर भेजे। कुरान कहता है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसाने कौमिही लियुबय्यिन लहुम, सूरह इब्राहिम 14:4। यानी हमने हर रसूल को उसकी कौम की ज़बान में भेजा ताकि वह उन्हें साफ साफ समझा सके। अल्लाह ने आखिर में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह को पूरी इंसानियत के लिए आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा। कुरान में फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सूरह अल-अंबिया 21:7। यानी ए मोहम्मद, हमने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसलिए कुरान हमें ये पैगाम देता है कि हम नबी की सुन्नत को अपनाएं और उनकी सीरत से रहनुमाई हासिल करें। तीसरा, इबादत और बंदगी। कुरान बार बार इंसान को अल्लाह की इबादत करने की दावत देता है। इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा या हज तक सीमित नहीं है, बल्कि हर नेक काम इबादत है अगर वह अल्लाह के लिए किया जाए। कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियाबुदून, सूरह अज-जारियात 51-56। यानी मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रोज़ा रखना, हज करना, ये सब अल्लाह की इबादत के हिस्से हैं। लेकिन साथ ही दूसरों की मदद करना, सच बोलना, इंसाफ करना और गरीबों का ख्याल रखना भी इबादत है। 4, इंसाफ और अखलाक। कुरान का पैगाम है कि इंसाफ कायम करो और अच्छे अखलाक अपनाओ। कुरान कहता है, इन्नल्लाह यामुरु बिअदली वल इहसान, सूरह अन-नहल 16:90। यानी अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और भलाई करने का। नबी ए करीम ने फरमाया, सबसे बेहतर इंसान वह है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। कुरान हमें यह पैगाम देता है कि झूठ न बोलो, रिश्वत न दो, जुल्म न करो, अनाथों और गरीबों का ख्याल रखो, अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो। 5वां, इंसान की जिम्मेदारियाँ। कुरान इंसान को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। इंसान अल्लाह का बंदा है और उसे अल्लाह के हुक्मों पर चलना है। कुरान कहता है, इन्ना अर्जनल अमानता अलस समावाति वल अर्दी वल जिबालिफ अबैन अयहमिलन्हा व अशफक्न मिन्हा व हमलहल इंसान, सूरह अल-अहज़ाब 33-72। यानी हमने अमानत, जिम्मेदारी आसमान, जमीन और पहाड़ों के सामने रखी तो उन्होंने उसे उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन इंसान ने उसे उठा लिया। कुरान कहता है कि इंसान को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। अल्लाह का हक अदा करना, इंसानों के हक अदा करना, अपने बच्चों की सही परवरिश करना, समाज में अच्छाई फैलाना और बुराई रोकना। 6, आखिरत और हिसाब। कुरान का सबसे बड़ा पैगाम है आखिरत पर ईमान। दुनिया की जिंदगी फानी है, लेकिन आखिरत हमेशा की है। कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, सूरह आले इमरान 3:185। यानी हर जान को मौत का मजा चखना है। कुरान हमें बताता है कि कयामत के दिन हर इंसान से हिसाब लिया जाएगा। नेकी करने वालों को जन्नत मिलेगी और गुनाह करने वालों को जहन्नम। फमय्यमल मित्काल जर्रतिन खैरन यरा व मय्यमल मित्काल जर्रतिन शर्रन यरा, सूरह अज-जलजला 99 7-8। यानी जिसने राई के दाने बराबर भी नेकी की होगी वह उसे देखेगा, और जिसने राई के दाने बराबर भी बुराई की होगी वह उसे देखेगा। 7, कुरान का इंसानियत के लिए पैगाम। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। ये किताब रहमत है, शिफा है और हिदायत है। कुरान कहता है, हाजा बयानुन लिन्नासी व हुदन व मवइज़तुन लिल मुत्तक़ीन, सूरह आले इमरान 338। यानी ये बयान है लोगों के लिए और हिदायत है परहेजगारों के लिए। कुरान हमें यह पैगाम देता है कि इंसानियत को एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह की किताब पर अमल करके समाज में अमन और इंसाफ कायम करना चाहिए। तकवा और परहेजगारी अपनानी चाहिए। दुनिया की जिंदगी को आखिरत की तैयारी समझना चाहिए। खुलासा,
दोस्तों, कुरान अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए आखिरी और मुकम्मल पैगाम है। इसमें तौहीद है, नबूवत है, इबादत है, इंसाफ है, अखलाक है, इंसान की जिम्मेदारियां हैं और आखिरत की हकीकत है। अगर इंसान इस किताब को अपनाए तो उसकी दुनिया भी रोशन हो जाती है और आखिरत भी कामयाब हो जाती है। कुरान का पैगाम यही है, अल्लाह की इबादत करो, रसूल की इताअत करो, इंसाफ कायम करो, अच्छाई फैलाओ और बुराई से बचो। कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और इसे पढ़ना सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इंसान की ज़िंदगी और दिल दिमाग के लिए रहमत और बरकत है। यहाँ मैं आपको कुरान पढ़ने के फ़ायदे तफसील से बता रहा हूँ। कुरान पढ़ने के फ़ायदे: 1. दिल को सुकून मिलता है। कुरान अल्लाह का कलाम है। इसे पढ़ने से दिल में सुकून और तसल्ली उतरती है। अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, सूरह रद 13:28। यानी याद रखो, अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। 2. नेकियों का अज्र। नबी करीम ने फरमाया, जो कुरान का एक हरफ पढ़ेगा उसे 10 नेकियां मिलेंगी। तिरमिजी। यानी हर अलिफ, ला, मीम पढ़ने पर भी इंसान को 10 नेकियां मिलती हैं। 3. गुनाहों की माफ़ी। कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने से अल्लाह इंसान के गुनाह माफ़ कर देता है और उसके दर्जे बुलंद करता है। 4. शिफा और रहमत। कुरान इंसान की रूह और दिल के लिए शिफा। सूरह इसरा 17:82। यानी हम कुरान में से वही चीज़ उतारते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। 5. जिंदगी में रहनुमाई। कुरान हिदायत की किताब है। इसे पढ़ने से इंसान को सही गलत का फ़र्क समझ आता है। ये इंसान को अंधेरे से निकालकर नूर की तरफ ले जाता है। 6. क़यामत के दिन शफ़ाअत। नबी करीम ने फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि यह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। मुस्लिम। 7 दर्जों की बुलंदी। रसूल करीम ने फरमाया, कुरान के पढ़ने वालों से कहा जाएगा, पढ़ो और चढ़ते जाओ जन्नत के दर्जों में, और जैसे दुनिया में पढ़ते थे वैसे ही पढ़ो। तुम्हारा मुकाम वहीं होगा जहां तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। तिरमिजी। 8. घरों में बरकत और नूर। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रहमत नाजिल होती है, फरिश्ते उतरते हैं और घरों में बरकत होती है। 9. बच्चों की तरबियत और इल्म। कुरान पढ़ने से बच्चों में अच्छा अखलाक, इल्म और अल्लाह की पहचान पैदा होती है। 10. आखिरत की कामयाबी। कुरान पर अमल करने से इंसान जन्नत का हकदार बनता है। ये किताब दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का रास्ता दिखाती है। कुरान पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना हर मोमिन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी नेमत है। यह न सिर्फ हमारी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और रहनुमाई लाता है बल्कि आखिरत में भी हमारे लिए नजात और जन्नत का रास्ता बनाता है।